Johar. A very good evening to all of you. I am Mrs. Kyangte, the president of Jiasawa, along with the joint secretary. Secretary, she's Gayatri Singh, Mrs. Gayatri Singh, and joint secretary, she's Divya Sridivasan, Yamini, and the treasurer, Mrs. Yamini, and all other members of Jiasawa. We welcome you this evening, and together we express our gratitude, and we want to say thank you to all of you for being here this evening. And in spite of your busy schedules that you have given us this time, we are all very happy to interact with you, and thank you once again. So Jiasawa is organizing this Diwali Mela. It is scheduled from 23rd October to 27th October. It is a period of 5 days at Morabadi ground. Okay, and the timing is from 11 a.m. to 10 p.m. And regarding the purpose of this Mela, Jiasawa organizes this kind of Mela each year, mainly to give opportunity to rural artisans and also to showcase rural products of the state of Jharkhand, also to provide a platform for budding entrepreneurs and business enterprises. However, this time this Mela is a little bit different because of MCC. At this time, the MCC is in place. So many of the state government departments, they are not able to join us. So basically what we have this time is like a consumer fair. And we, in spite of the state government not participating, we have a few new items like real estate people joining us. We have a good participation from real estate and also the automobile sector. Okay, so since this is a time for purchasing and upgrading, we are hoping that this new edition will be very beneficial for our visitors. And another speciality of this Mela this time is that we are having a depiction of a village, a Jharkhand village, with craftsmen demonstrating various skills. And we hope that this will provide an appreciation for rural artisans and their skills, and also appreciate the hard work and the labor that goes into creating products that we take for granted, and that comes into our home. And it a lot of labor and a lot of hard work and skill is required for making all those things. And as our past experiences tell us, Jasua Mela is always much appreciated, and we hope this time too that the Mela will bring much fun and enjoyment, as well as good opportunity for many people in Ranchi city. Also, at this time, we want to just mention here that when we do this kind of Mela, the proceeds from this Mela that we receive from the stalls, from the entry tickets, it goes towards funding for social work and charitable work that Jiasawa undertakes each year. And so I take this opportunity here to invite everyone to come visit the Mela and do a lot of shopping and also eat to your heart's content. And here is an invitation for everyone to come and enjoy the Mela. Thank you. You have any questions? Yes. मैं गायत्री सिंह हूँ, सचिव जसोवा। स्टॉल्स हमारे पूरे देश से आ रहे हैं, कश्मीर से, मैसूर से, नागपुर से, भागलपुर से, सिलीगुड़ी से। आप
जिसका नाम लेंगे वहीं से आ रहे हैं। तो ये पूरे ऑल ओवर इंडिया से स्टॉल्स हैं। जो बुनकर हैं, हमने नाबार्ड को बुला रखा है, उनके भी स्टॉल्स जो हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया से आ रहे हैं। कई हम लोग यहाँ पे नाबार्ड के थ्रू ये दर्शाना चाहते हैं कि मिडिल मैन इम्पॉर्टेंट नहीं है, वीवर्स डायरेक्टली सेल करेंगे प्रोडक्ट्स अपने टू द पब्लिक। तो ये बहुत बड़ी हम अपना अचीवमेंट भी समझेंगे। तो ये है। और क्या लगता है आकर्षण का केंद्र क्या कुछ रहने वाला है? इसमें स्टॉल्स हैं सारे ऑल ओवर इंडिया से। एक तो पहला वो है। सेकंड है, हम जो ग्रामीण का दृश्य दिखा रहे हैं वो भी बहुत अच्छा है। जहाँ पे आप एक पॉटर को देखेंगे, वो पॉट बना रहा है कैसे, पूरा आप दर्शाया जाएगा। एक लगातार वो बनाएगा लोगों के लिए। सौराई पेंटिंग के आर्टिजन को बुलाया है, जो सौराई पेंटिंग आपको करके दिखाएंगे। वो दृश्य दिखाएंगे जो हम लोग को, शहर वासियों को जल्दी दिखाई नहीं पड़ता है। और इसमें हम लूम भी लगा रहे हैं, कपड़ा कैसे बनता है, साड़ी कैसे बनती है। तो झारक्राफ्ट अपना वो लूम लगाएगा हम लोग के लिए। तो इससे अपॉर्चुनिटी होगी हमारे यहाँ के बच्चों को, जिनके माता पिता अभिभावक आए अपने बच्चों के साथ और ये विलेज सीन उनको दिखाएं। ये बहुत बड़ा हमारा आकर्षण का केंद्र है इस बार। और फूड कोर्ट भी हमने रखा है, जहाँ पे बहुत ढेर सारे व्यंजन हैं। करीब 100 व्यंजन बनेंगे। तो आप आएँ और अपना हर व्यंजन का को चखें और मज़ा लें उसका। हमने अपना टाइम थोड़ा बढ़ा दिया है मेले का। हम 11 o'clock से 10 o'clock तक रख रहे हैं। ये पूरी फैमिली जब शॉपिंग कर ले तो यहीं पे अपना डिनर भोजन करके जाए, उसका आनंद, मेले का पूरा आनंद लें। हम कल्चरल प्रोग्राम्स रख रहे हैं इस बार, लोगों को ही आकर्षित करने के लिए। हम एक बहुत बड़ी क्लासिकल सिंगर, ठुमरी सिंगर गिरिजा देवी की शिष्या हैं, वो यहाँ पे आ रही हैं, अपना प्रोग्राम देंगी एक दिन। इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक एंड लाइट म्यूज़िक वो गाएंगी। हम लोग ने हर दिन का कल्चरल प्रोग्राम अलग रखा हुआ है। कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, कथक। बेसिकली हम अपने कल्चर को, इंडियन कल्चर को दर्शाना चाहते हैं। उसके साथ साथ अपने झारखंड के कल्चर को भी दिखाना चाहते हैं। तो हमने पहले दिन छाऊ पाइका, जो कभी हम लोग को जल्दी दिखता नहीं है, टीवी पे देखा है, मैंने भी देखा था। तो मैंने सोचा कि इसको मैडम के गाइडेंस में ये बात हुई कि लोगों के लिए भी करा जाए। तो हम छाओ पाइका और नागपुरी डांस और भी अपने झारखंडी जो डांस हैं वो दिखाना चाहते हैं। अ, और क्या है, रियल एस्टेट है, ऑटोमोबाइल है, 2 व्हीलर्स एंड 4 व्हीलर्स हैं। हमने अपना कंज्यूमर फेयर बनाया है कि पर्सन आए, मेले का आनंद ले, कपड़े खरीदे, उसके साथ फ्लैट आप लीजिए, आप गाड़ी लीजिए। एक रूफ के अंदर हर चीज़ अवेलेबल है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। कितने स्टॉल लगे? Yes, yes. हमारे 260 से ज़्यादा स्टॉल लग रहे हैं हमारे। और एंट्री के लिए क्या प्रोसेस है? तो एंट्री की टिकट्स हैं जो 30 रुपीज़ के हैं। उसमें हम लोग QR कोड भी इस बार दे रहे हैं। जैसे आजकल तो इंडिया कैशलेस जा रही है, तो आप QR कोड यूज़ करिए। जिनके पास कैश नहीं है, फ़ोन में, हम लोग का तो आज फ़ोन ही बैंक बन गया है, तो हम लोग इस तरह से कर रहे हैं। दूसरे स्टेट की बात हो रही है, दूसरे कंट्री की बात हो रही है कि स्टॉल लग रहे हैं, कौन-कौन से? नहीं, कंट्री अफ़गानिस्तान से जनरली आते हैं, अपना कार्पेट्स इसे लगाते हैं। दूसरे कंट्री का तो हम लोग को इस बार थोड़ा कम मौका लगा कि MCC आ रहा था, तो थोड़ा-सा हम लोग बता नहीं पाए। बाद में निर्णय हुआ इसको करने का, क्योंकि निर्णय ज़रूरी था। हमारे लोकल आर्टिज़न्स को मार्केट हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो हमारा जसोवा मेला बहुत फ़ेमस है इस चीज़ के लिए। बहुत सस्ते में हम लोग अपने स्टॉल्स देते हैं। तो जैसे हम लोग अपना शोकेस कर सकें, फीमेल एंटरप्रेन्योर्स, लोकल आर्टिजन्स एंड जो भी करना चाहे, अपना बिजनेस आगे बढ़ाना चाहे, वो आया है। हमारे जसोवा मेले से बहुत सक्सेसफुल बिजनेसेस भी आजकल महिलाएं उद्यमी रन कर रही हैं। तो हमारा यही उद्देश्य है कि एक प्लेटफॉर्म दीजिए, अपना आप सामान दिखाएं, पब्लिक को भी उनका मार्केट वैल्यू बढ़े, और अवसर देना चाहते हैं। महिलाओं को रोजगार का अवसर भी प्रदान। हाँ, स्वरोजगार तो हम लोग का महिला सशक्तिकरण हर वक्त जसोवा का एक एम रहा है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनको भी दें। महिला के साथ पुरुष भी अपना स्टॉल लगा रहे हैं, कोई यहाँ पे पाबंदी नहीं है। दिवाली है, दिवाली मेला है, हाँ। बच्चों के लिए हाँ, बच्चों के लिए हमने एक फन जोन बना रखा है, और एक स्कूल भी यहाँ पे है जो आके अपना बच्चों को सिखाएगा, अपना गेम्स कराएगा, कुछ मेंटल गेम्स होंगे, ये सब हैं। तो बच्चों के लिए फन जोन है, तो जहाँ पे आके
हाँ, ये आपको बता दिया जाएगा। अभी हमने अनुरोध करा था अपने ऑनरेबल राज्यपाल से, तो उनका समय अभी मिल नहीं पाया है। तो अभी हम लोग का डिसाइड नहीं है। मुख्य एमसीसी है तो मुख्यमंत्री तो आ नहीं सकते, कोई और नेता आ नहीं सकते, तो ये डिसीजन लेना बाकी है, तो आप लोग को सूचित किया जाएगा। नहीं, बजट तो क्या बजट है? नहीं, ज़्यादा ऐसा कुछ है नहीं। हम लोग तो जो भी प्रोसीड जाते हैं वो हमारे सारे चले ही जाते हैं। तो अभी तो बजट का बारे में हम आपको एग्जैक्टली बता नहीं सकते हैं, क्योंकि अभी हम लोग की तो अकाउंटिंग हो ही रही है, कितना हो रहा है तो उसके बारे में नहीं, हम लोग ज़्यादा तो नहीं करते हैं। जितना हम लोग के पास है फंड्स, उसको पूरा हमारा उसी में चला जाता है, मेले को ही आयोजित करने में। तो उसमें मैं क्या आपको बताऊँ। नहीं, हम लोग अपने से करते हैं। जसोवा अपने आप ही ऑर्गेनाइज करता है। ऑर्गेनाइजेशन जो है हम लोग का ईसी है, एग्जीक्यूटिव कमेटी है, वो ऑर्गेनाइज करती है। तो हम लोग खुद करते हैं जो भी ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। आज आज के दिन में कुछ विशेष प्रोग्राम ऐसा किया विशेष प्रोग्राम इन द सेंस? जैसे कुछ लोग बाहर से आ रहे हैं, आपने बताया। हाँ हाँ, कल्चरल प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं। आधे मोर देन हाफ तो हम लोग के झारखंड के ही हैं, वो कला करते हैं। तो एक दिन बाहर से आ रहे हैं कला। वो 26 तारीख रहेगा, सैटरडे। तो आप सब लोग को मैं आमंत्रण देना चाहूँगी, उस दिन आप आएँ और गायन का आनंद उठा सकें, क्योंकि ये सब शास्त्रीय संगीत, स्पेशली जो आप बनारस घराने का है, तो मौका कम लगता है लाइव सुनने का। आधे जो आर्टिस्ट हैं वो तो दिल्ली या विदेशी जाके अपना कला दिखाते हैं, हम लोग को कहाँ मौका लगता है। समय 6:30 बजे हम लोग के जो कल्चरल प्रोग्राम्स है वो 6:30 बजे होंगे शाम को। तो 1.5 घंटे के होंगे, तो 6:30 बजे से। और कोई क्वेश्चंस?